Hello, learners. Hello, everyone. My name is Yash, and welcome back to SSCT Point. In our last session, we had completed compound nouns and had a glance at all the cases of a noun. In today's session, we have to elaborate possessive case of a noun more. We have to see how possessive case is employed in a particular sentence. We have to see, we have to observe the methods of using possessive nouns in a particular sentence. So let us start, guys. So, in today's session, we are going to start. We are going to start possessive noun. जैसा कि I told you in sorry, give me a moment here. So, in my last session, I told you that we are gonna discuss possessive noun in today's session. And मैंने आपको possessive noun की definition भी बताई थी. Possessive noun क्या होता है? Possessive noun that shows the possession. Possessive noun shows the possession, belongings, the relation we have with a person or thing, etc. So now we have to elaborate possessive nouns more. So let us move to our next slide, and in this manner we are gonna see some methods of using possessive nouns in a particular sentence. I hope you understood. So let us move to our next slide so that we can be able to discuss the first rule. So in this slide, we have three rules. We will start with the first rule. What first rule says? Okay, let me change the color. I think it is white because in this slide, only white color would be working. Give me a moment. It is an eraser. Yeah. So I have chosen a color that is white. Okay, now we will start with the first rule. So what first rule says? First rule says कि जब भी हम कोई भी नाउन को पोजेस्ड करवाते हैं, आई मीन किसी भी नाउन का बिलोंगिंग बताते हैं कि वो पर्टिकुलर नाउन है वो किस चीज से बिलोंग करता है, उसका बिलोंगिंग क्या है, देन वी यूज व्हाट. हाउ टू शो इट? वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस. जब भी किसी नाउन का बिलोंगिंग बताना है, पोजेशन बताना है, वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस. दिस इज अपॉस्ट्रोफी एंड दिस इज स्मॉल एस, and we paste it, we attach it with the particular noun we are making the possession of. Like आप इस एग्जांपल में पहले वाला रूल यही कहता है कि अगर कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन्स, नॉट प्लूरल वन. सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं? जो सिंगुलर होते हैं, विच आर ओनली वन. ओके, जो केवल एक होते हैं, दे आर नॉट मोर देन वन. ओके, एंड सिंगुलर नाउन में हाउ वी शो पोजेशन, वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस. This is a very simple rule, and I know that you will be getting it easily. Like you can see some examples. President's bodyguard. हिंदी में इसका मतलब क्या हो गया? President का bodyguard. It is showing the belonging of president with what? With his bodyguard. I hope you got it. Then we have Daniel's new house. Daniel का नया घर. We are showing the possession of Daniel. The new house belongs to whom? The new house belongs to Daniel. Okay. John's room. The room belongs to whom? The room belongs to John. So, rule number second क्या कहता है? Rule number second कहता है, yeah. In rule number one, we talked about a noun which is singular. Okay, which is singular. But in second rule, we are going to talk about the plural noun. We are going to talk about the plural animate noun. Animate noun मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि ये सारे जीवित हैं. यहाँ पे भी एनिमेट है. देखिए, जो प्रेसिडेंट है वो भी एनिमेट है. आई मीन वो जीवित है, लिविंग है. डैनियल, जॉन, ये सारे जीवित हैं. इसका मतलब क्या हो गया? देयर मस्ट बी अ डिफरेंट रूल फॉर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, इन एनिमेट नाउन. लिविंग और नॉन लिविंग जो नाउन्स होते हैं उनका पोजेशन थोड़ा डिफरेंट होता है. बट इस टाइम हम जो रूल नंबर वन है एंड रूल नंबर सेकंड है, उसमें हम एनिमेट नाउन, आई मीन लिविंग नाउन की बात कर रहे हैं. नॉन लिविंग नाउन की बात हम बाद में करेंगे. तो ये हो गया रूल नंबर वन, जो कि सिंगुलर एनिमेट. पहले आपको बात ध्यान क्या रखनी है? सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा एनिमेट होना चाहिए, एक होना चाहिए, जीवित होना चाहिए. अब सेकंड रूल बताता है कि वो नाउन तो एनिमेट होना चाहिए. एनिमेट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमेट वंस. ओके, ऊपर वाले में क्या था? सिंगुलर था, लेकिन इस टाइम पे क्या है? इस टाइम पे है प्लूरल. यानी कि ऊपर वाला एग्जांपल जो अपॉस्ट्रोफी एस हमें अटैच करना है विद अ सिंगुलर नाउन पे अटैच करना है. ओके, लेकिन अगर if the noun is what? Noun is plural. अगर वो प्लूरल है, then how you will use? प्लूरल है, इसका मतलब क्या हो गया? उसके आखिर में लेटर एस है.
देन आप उसका पोजेशन कैसे शो करोगे? यू विल शो लाइक दिस, एज यू कैन सी इन दीज थ्री एग्जांपल्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने आपको पहले वाले रूल में बताया था, इस बात को ध्यान से देखिएगा कि पहले अपॉस्ट्रोफी आता है देन एस आता है, राइट? लेकिन अगर नाउन प्लूरल है उसके एंड में ऑलरेडी एस का यूज किया गया है, देन यू विल नॉट यूज एस अगेन, जैसे कि मैंने यहाँ बोला है। अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे, एस का यूज दोबारा नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें जो प्लूरल नाउन है वो उसमें ऑलरेडी एस का यूज हो रखा है। सो दिस इज द की कि भाई आपको दोबारा एस का यूज नहीं करना है इफ दैट नाउन कंटेन्स ऑलरेडी कंटेन्स अ पर्टिकुलर एस इन द एंड। ओके, लाइक दिस, मिनिस्टर्स हाउस। मैंने क्या करा, मिनिस्टर्स वो अपस्ट्रफी एस जो होता है उसमें जो एस होता है वो उसका एस नहीं है, ये मिनिस्टर्स का ही एस है। ओके, तो ये मैं सोच रहा ये जो एस है ये अपस्ट्रफी का है, नो, ये जो एस है ये मिनिस्टर्स के साथ आया। ओके, बाद में मैंने क्या करा, पोजीशन शो करने के लिए केवल अपस्ट्रफी लगा दिया, एस को नहीं लगाया, इट वुड बी यूज्ड विदाउट एस। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो मिनिस्टर्स हैं वो एक से ज्यादा है, बहुत सारे मंत्रियों का घर या मंत्रियों का घर, सिंपल। उसके बाद है बॉयज रूम। अब यहाँ पे एक से ज्यादा बॉय की बात करी गई है, लड़कों का रूम, लड़कों का कमरा। उसके बाद है डॉक्टर्स एडवाइजरी, यानी कि एक डॉक्टर की एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा डॉक्टर की एडवाइजरी की बात कर रहा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो डॉक्टर्स एडवाइजरी मतलब मोर देन वन डॉक्टर इज एडवाइजिंग समथिंग। ओके, आई होप आपको रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 दोनों ही समझ में आ गए होंगे, दे आर वेरी सिंपल। उसके बाद है रूल नंबर 3 की हम बात करेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, लेट मी चेक वंस, या इट इज टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड नाउन। मैंने आपको लास्ट सेशन में कंपाउंड नाउन के बारे में बताया था। बेसिकली कंपाउंड नाउन में क्या होता है, एक कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच होता है, वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, इट इज कनेक्टेड विद अदर नाउन। ठीक है, एक नाउन होता है, वो जरूरी है होना, और उसके साथ कोई भी डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, कुछ भी आ सकता है, नाउन आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। आई टॉक्ड दिस इन माय लास्ट सेशन। ओके, आई टॉक्ड अबाउट दिस इन माय लास्ट सेशन, आई होप यू ऑलरेडी नो इट। उसके बाद है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है व्हेनेवर यू हैव कंपाउंड नाउन, तो उसमें पोजेशन का यूज कैसे करेंगे। मैंने आपको कंपाउंड नाउन में बताया था व्हेन वी हैव टू नाउन्स, और उस टाइम पे हमें क्या करना है, किसी भी नाउन को प्लूरल करना होता है, या लाइक वी हैव टू राइट अ प्लूरल कंपाउंड नाउन। तो उसमें हमें देखना पड़ता है विच नाउन इज मेजर, विच नाउन इज इंपॉर्टेंट, राइट, विच नाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग और बिटवीन टू नाउन्स। ओके, उसी को हम प्लूरल करेंगे। लेकिन पोजेशन में हमें ऐसा सोचना ही नहीं है, पोजेशन में जो आखिर वाला नाउन हो उसमें आग बंद करके आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो टू शो इट्स पोजेशन। ओके, जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का घर। सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर क्या एक तरह का कंपाउंड नाउन है, उसमें सोचना ही नहीं है, यहाँ पे तो हम लगा ही नहीं सकते हैं, सॉरी व्हाट, क्या नहीं लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस हम इस वाले पे लगा ही नहीं सकते हैं। तो जो कंपाउंड नाउन होता है उसमें जो सेकंड वाला या आखिर वाला नाउन होता है, या एंड वाला भी बोल सकते हैं, उसमें सिंपल तरीके से आप लगा दो, सिंपली यू हैव टू राइट व्हाट, यू हैव टू अटैच अपॉस्ट्रोफी एस सिंपली। ओके, एंड इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम अ पोजेसिव कंपाउंड नाउन। I hope you understood. Like I have taken another example, mother-in-law's wedding anniversary. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मदर इन लॉ की वेडिंग एनिवर्सरी है, मदर इन लॉ की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो मैंने क्या करा, सिंपल, अच्छा यहाँ पे जो लॉज है, या एक सेकेंड गिव मी अ मोमेंट, शायद मैंने यहाँ पे गलती तो नहीं करी है, यहाँ पे ये एस यहाँ पे आएगा, शायद मिस्टेक हो गई है, सो फॉरगेट इट। तो ये ऐसे बनेगा, ओके, ऐसे बनेगा, मदर इन लॉज ये ऐसे बनेगा। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जो कंपाउंड नाउन होता है उसमें जो आखिर वाला नाउन होता है, यानी कि सेकंड वाला, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, जो सेकंड वाला नाउन होगा उसमें क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी आप लगा दोगे आग बंद करके, अपॉस्ट्रोफी विद एस। ओके, ये सिंपल था, पहले की 3 रूल, आई होप यू अंडरस्टूड। पहले के 3 रूल बहुत सिंपल है, अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, बिकॉज this part of a noun comes in the examination strictly, I'm talking about it strictly. Okay, ये बहुत बार देखा गया है, possessive case of a noun in the SSC examination and other exams too. Okay, तो ये समझ में आ गया होगा, कंपाउंड नाउन में आखिर वाले नाउन पे apostrophe s लगा दो आग बंद करके, इसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है which you have to follow.
उसके बाद आगे बढ़ते हैं to our next slide. Give me a moment. Yeah, rule number 4. Rule number 4. Now we have rule number 4. Rule number 4 क्या कहता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें आखिर में एस की साउंड ऑलरेडी आ रही होती है। एस की साउंड मिल जाएगी या यू विल फाइंड दिस सस सस लाइक दिस। ओके, तो ऐसा लगता है, फील होता है व्हाइल स्पीकिंग दोज वर्ड्स, व्हाइल प्रोनाउंसिंग दोज वर्ड्स कि एस ऑलरेडी है। बेशक एस हो ना, कोई और वर्ड हो विच speaks or which pronounces the same what sound as s. ओके, तो उसमें क्या करते हैं, जब एस की साउंड हमें ऑलरेडी आती है या हिस की, सस की, इन सब की साउंड ऑलरेडी आती है, तो दोबारा हम क्या नहीं लगाते हैं, दोबारा हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा दोबारा बोलने में। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नाउन ऑलरेडी प्लूरल है, उसके आखिर में क्या आ रहा है, उसके आखिर में ऑलरेडी एस आ रहा है, you will not use apostrophe s again. You will be using apostrophe only without s. Okay, like this. ये है प्लूरल के लिए, प्लूरल नाउन के लिए। एंड एनिमेट भी होना चाहिए। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर कोई नाउन है उसमें आखिर में ये तीनों साउंड आ रही है, तो दोबारा आप यही रूल फॉलो करोगे, है ना। यहाँ पे बेशक इन सब में ये जो जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये बेशक प्लूरल ना हो, लेकिन इनकी साउंड कैसी आती है, प्लूरल जैसी ही आती है, जैसे कि इन सबकी साउंड आएगी। तो ऑलरेडी ऐसा अज्यूम किया जाता है कि भाई वो एस की साउंड है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, अपस्ट्रोफी एस लगा, सॉरी अपस्ट्रोफी लगा के छोड़ देते हैं, एस को यूज नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, विदाउट एस यू विल बी यूजिंग इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टू। तो वही है, सेम है जैसे प्लूरल एनिमेट नाउन के साथ था, ऐसे ही जो रूल नंबर 4 है वो ये कहता है, अगेन आई विल टेल यू विद एग्जांपल्स, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, मोजेस डेथ। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसमें पहले ही सस की आवाज आ रही है, तो यू विल नॉट बी यूजिंग एस अगेन। ओके, यू विल बी मीनिंग इट विद apostrophe ओनली। ओके, सिंपल है। जीसस लव फॉर जस्टिस सेक। ओके, अगर दोबारा एस का यूज कर देते हो वो ऑकवर्ड हो जाएगा while speaking, while pronouncing these words. Justice sake, Jesus is love, Moses is death. ओके, ये ऐसे बोला जाएगा when you make them possessive. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी एग्जांपल ले लो इसके अलावा। कंशंस सेक भी होता है, फॉर कंशंस सेक। ओके, तो उसमें भी ऐसे ही यूज करोगे, दोबारा आप एस नहीं लगाओगे, अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ दोगे। लेट अस मूव टू रूल नंबर 5। ये भी बहुत सिंपल है। रूल नंबर 5, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये 3 एग्जांपल मैंने लिए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने रखे हैं। ये कहता है कि अगर कोई दो नाउन है, दे आर बिलोंगिंग टू ईच अदर, दे बिलोंग टू ईच अदर एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, तो उसमें आप पोजेशन कैसे लगाओगे, आई मीन अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करोगे। लाइक आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू विद इन और विद मोर एग्जांपल्स। ओके, लाइक ओवर हियर, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखी है, तीनों ही सेम सेम सी लगती है आपके सामने। ये तीनों स्टेटमेंट है, तीनों ही सेम सेम सी लग रही है आपको, आपने देखा होगा, जैसे कि आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई वाज एन एडम्स सन। ओके, पहले वाले केस में क्या है, ई वाज एन एडम्स सन, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एफ यहाँ पे भी लग रही है, अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पे भी लगा हुआ है। दूसरे वाले एग्जांपल, ई वाज एन एडम, इसमें क्या है, केवल पहले वाले केस में, पहले वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा, दूसरे में छोड़ दिया है। दो नाउन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। थर्ड वाले में क्या है, ईवा एंड एडम्स, यानी कि जो फर्स्ट नाउन है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, सेकंड वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है। मैं बेसिकली बोलना चाहता हूं कि व्हेन दे आर क्लोजली रिलेटेड, इसका मतलब क्या हो गया, जो उनका बेटा होगा उन दोनों को रिलेट करता होगा, यानी कि यही बोलना चाह रहा है। एक्चुअली में आई वांट टू से, आई वांट टू कॉन्वे कि ये जो सन है वो दोनों का कॉमन है। तो अब इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, ऊपर वाले एग्जांपल, लाइक यू कैन सी दी इमोजी। ओके, आपको लग ही रहा होगा ऊपर वाले एग्जांपल गलत है, नीचे वाला सही है। यानी कि व्हेन अ पर्टिकुलर नाउन बिलोंग्स टू बोथ ऑफ द नाउन्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, सो यू विल ऐड अपॉस्ट्रोफी एस ओनली इन द सेकंड सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट, कि भाई जब भी दो नाउन आपस में कॉमन हो, उनका पोजेशन आपस में कॉमन हो, तो अपॉस्ट्रोफी एस क्या लगेगा, कैसे लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस सेकंड वाले नाउन पे लगेगा बस। दोनों पे लगाओगे उसका डिफरेंट अलग हो जाएगा, तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, डिफरेंट मीनिंग वुड बी देयर। और अगर पहले वाले पे लगा दोगे, लाइक इन द सेकंड सेंटेंस, उस वो पूरी तरह गलत हो जाएगा, मीनिंगलेस स्टेटमेंट। अब देखिए, वैसे तो ग्रामेटिकली ये सही है,
पहला वाला सही है। क्यों? क्योंकि ईवास एंड एडम सन का कुछ मतलब है, इसका मतलब ये है कि ईवा का अलग बेटा है, एडम का अलग बेटा है। दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो गया। व्हाई? बिकॉज़ पहले वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे और दूसरे वाले में कुछ नहीं लगाओगे, तो वो मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। और थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजर रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन दे हैव द सेम पोजेशन। उनका कॉमन पोजेशन है, यानी कि उनका कॉमन बेटा है, दोनों का ही वो बेटा है। ईवा का, एडम का, दोनों का एक ही बेटा है, एक ही सन है। ओके, बोथ हैव द सेम मीनिंग, यू कैन सी ओवर हियर। आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। ठीक है, तो जब भी किसी नाउन को, पर्टिकुलर नाउन को आपको दो नाउन का पोजेशन बनाना है, कॉमन पोजेशन बनाना है, तो सेकंड वाले नाउन में पोजेशन लगा दो, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, पहले वाले को छोड़ दो। ओके, अब मैंने दो एग्जांपल और लिए हैं इसके साथ टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। पहला वाला और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, दे आर ऑलमोस्ट सेम, बट अ स्लाइट डिफरेंस इज देयर। कैसे? शेक्सपियर्स एंड टेनिसंस नॉवल, ठीक है, ये भी सही है ग्रामेटिकली, और दूसरा जो शेक्सपियर एंड टेनिसंस नॉवल, ये भी सही है ग्रामेटिकली। बट दोनों में क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे भी लगा दिया शेक्सपियर के साथ, एंड टेनिसन के साथ भी लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो नॉवल है वो दोनों की अलग अलग है। ओके, शेक्सपियर के पास अलग नॉवल है, टेनिसन के पास अलग नॉवल है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट अगेन। अब इस वाले में क्या है? शेक्सपियर एंड टेनिसंस नॉवल। अब इस केस में क्या है? इस केस में वही है जो रूल कहता है। रूल क्या कहता है? कि नॉवल अगर दोनों के लिए कॉमन है, नॉवल अगर दोनों की कॉमन है, तो जो सेकंड वाला नाउन होगा केवल उसमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। बोथ हैव द सेम नाउन। आई होप यू अंडरस्टूड द रूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आ गया है आपको समझ यहाँ तक, तो अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? लेट मी सी फर्स्ट। या इट इज टॉकिंग अबाउट एपोजिशन। एपोजिशन क्या होता है? एपोजिशन होता है कि when two nouns are there and the second noun is explaining the first noun. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, बिकॉज ये रूल समझाने से पहले आपको एपोजिशन का मतलब बताना जरूरी है, बिकॉज यू विल बी सीकिंग दिस वर्ड, और यू कुड बी सीकिंग दिस वर्ड इन द न्यू फॉर्म। ओके, और यू मस्ट एनकाउंटर दिस वर्ड फर्स्ट टाइम। तो एपोजिशन में क्या करना है आपको? एपोजिशन का मतलब बता देता हूँ विद एन एग्जांपल। सपोज करिए यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, दिल्ली के बारे में मुझे और बताना है। हाई हाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट लाइक दिस। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी है। तो यहाँ पे यू विल बी सीइंग टू नाउन्स। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, दिल्ली का नाम, एंड द सेकंड वन विद द आर्टिकल द, एंड दिस वन इज द सेकंड नाउन, दिस वन इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, ये कॉमन है, ये प्रॉपर है, तो ये एक प्रेजेंटेशन होती है टू शो एपोजिशन। एपोजिशन क्या कहता है? कि व्हेन यू आर यूजिंग टू वर्ड्स एंड द सेकंड वर्ड इज एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट वर्ड, लाइक जैसे कि यहाँ पे है। और ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। जो पहला वर्ड होगा विच हैज टू बी एक्सप्लेन्ड बाय द सेकंड नाउन, तो जो पहला होगा नाउन वो प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरा जो है कॉमन नाउन होना चाहिए, एंड उस कॉमन नाउन से पहले यू हैव टू यूज आर्टिकल द ओनली। ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। आई विल बी टेलिंग यू दिस थिंग इन आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स के सेशन में आई विल बी कवरिंग इट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पोजीशन, आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखो ए पोजीशन कैसे करना है। ए पोजीशन में आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, इट वुड बी मच बेटर फॉर यू। देखो यहाँ पे जॉन इज माय अंकल, रॉनी इज ब्रदर। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए पोजीशन आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? ये पहला नाउन हो गया अंकल। अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। ओके, हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट मोस्टली इसी फॉर्म में आप देखते हो। ठीक है, कभी कोई स्टूडेंट कैन रेज डाउट कि अभी मैंने बताया था जो पहला नाउन होगा वो हमेशा प्रॉपर होगा, पर यहाँ पे तो पहला नाउन प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे पहला नाउन क्या है? कॉमन है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट दिस वन इज ऑल्सो देयर। जॉनी इज माई अंकल, रॉनी इज ब्रदर, तो एक ये हो गया नाउन, एक ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किसकी है? किसकी एक्सप्लेनेशन है? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये है। ये एक नाउन है, और एक ये एक नाउन है। ठीक है, अंकल रॉनी एक नाउन है, ब्रदर एक नाउन है। देखो वैसे भी बन ही गया है। अंकल रॉनी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, एंड ब्रदर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऊपर का है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। यू विल बी फाइंडिंग सम अदर नाउन्स ऑलरेडी
with other format. So John is my uncle, Ronnie is brother. ठीक है, अब यहाँ पे एक नाउन अलग है, दूसरा नाउन अलग है, तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपको पोजेशन लगाना है, यू विल बी यूजिंग इट विद द सेकेंड नाउन ओनली। जो सेकेंड नाउन होगा उसमें आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, अंकल रॉनी इज ब्रदर। अब आपको डिफरेंस कैसे पता लगेगा? डिफरेंस पता लगेगा कि भाई इस तरीके से, इन दोनों एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस वॉच इज माई मदर्स रोजी फर्स्ट गिफ्ट, ये गलत हो गया है, जैसा कि ये मैंने इमोजी बना रखा है। क्यों गलत हो गया है? बिकॉज जो मदर है, जो मदर है वो रोजी है, जो रोजी है वो मदर का नाम है। तो मैं मदर से, मदर के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाऊंगा, पूरा नाउन कंप्लीट करूंगा पहले, उसके बाद जो आखिर नाउन होगा, आई मीन जो सेकंड नाउन होगा, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दोगे। ठीक है, जैसा कि ये पूरा रूल बता रहा है कि पोजेसिव साइन जो होगा वो सेकंड नाउन के साथ यूज होगा। ओके, लाइक ओवर हियर। तो ये हो गया पहला नाउन, ये हो गया दूसरा नाउन। ठीक है, तो ऐसे आप मिडल में नहीं लगा सकते हो, पूरा कंप्लीट करोगे नाउन। मदर पहले बता दिया, मदर डेजिग्नेशन बता दी, फिर उनका नाम बता दिया, नाम के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा दोगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ वी विल मूव टू रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 कहता है, बहुत ही सिंपल है, एंड यू कैन यूज इट, यू कैन सी इट। मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये रूल नंबर 7 यूज होता है। कैसे यूज होता है? इफ यू हर्ड अबाउट मेनी इंस्टीट्यूट्स, और मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, बट यहाँ पे एग्जांपल से मैं ले लेता हूँ। ये कहता है कि अगर कोई भी स्कूल है, ओके, कोई भी कॉलेज है, कोई भी शॉप है, कोई भी क्लिनिक है, और कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी चर्च है, कोई भी थिएटर है, ठीक है, उनके प्रॉपर नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। उसके बाद वो जो है, जिस तरह का इंस्टीट्यूशन है, वो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट वुड बिकम सुपरफ्लुअस। आई होप यू अंडरस्टूड। दोबारा उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, एक बहुत पुराना थिएटर था, सिनेमा था, अमर टॉकीज, है ना? अमर टॉकीज बोला जाता था उसको। मैंने एक दो बार देखा है इसका। तो अमर टॉकीज मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब मैं दोबारा आगे नहीं लिखूंगा सिनेमा, ठीक है। अमर टॉकीज लिख दिया, ठीक है, बहुत है। सिनेमा को मेरे को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अमर टॉकीज काफी है। एवरीवन वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये अमर टॉकीज क्या है। दे वुड बी, दे वुड नो, दे वुड गेट टू नो दैट इट इज अ सिनेमा, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिनेमा। जैसे और भी एग्जांपल मैंने यूज किए हैं। ही वेंट टू बार्बर्स, ठीक है, यानी कि अब इसका मतलब बार्बर्स का मतलब यही हो गया, बार्बर शॉप। मैंने शॉप एग्जाम्पल में नहीं लिखा, क्योंकि इट इज नॉट मैंडेटोरी, इट इज नॉट नेसेसरी, इट विल बिकम सुपरफ्लुअस इफ आई यूज शॉप अगेन, द वर्ड शॉप दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से क्या करो, चुपचाप से उसके प्रॉपर नाउन से पहले, या जो भी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का नाम है, बिल्डिंग का नाम है, वो लिख के अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। एक और एग्जांपल, हिज सन स्टडीज एट सेंट जेवियर्स। ठीक है, आपको पता है सेंट जेवियर एक अच्छा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, एंड इट इज वेरी रिनाउंड ऑल्सो। अब देखिए, यहाँ पे सेंट जेवियर्स लिख के ही छोड़ दिया है, बाद में स्कूल का यूज नहीं किया है, बिकॉज द रूल सेज द सेम कि यू डू नॉट हैव टू रिपीट अ पर्टिकुलर नाउन, सॉरी, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ बिल्डिंग और एन इंस्टीट्यूशन और एकेडमी विद द प्रॉपर नाउन। आई होप यू अंडरस्टूड माय मीनिंग। ओके, तो ऐसे ही लिख के छोड़ दो। अगर आपकी भी शॉप वगैरह है, एकेडमी वगैरह है, या जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, प्लीज उसका मेरे को लिख के बताइए कमेंट में कि भाई आप इस स्कूल को कैसे लिखा जा सकता है। ओके, तो स्कूल यूज करोगे तो स्कूल का नाम आप दोबारा नहीं लिखोगे, यू विल बी ओनली यूजिंग द पर्टिकुलर नेम विद अपॉस्ट्रोफी एस ऑफ योर स्कूल। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दीस टू रूल्स अगेन। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड विद रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 कहता है एब्रिविएशन। इट इज टॉकिंग अबाउट एब्रिविएशन। व्हाट डू यू मीन बाय एब्रिविएशन? एब्रिविएशन क्या होता है? एब्रिविएशन इज अ शॉर्ट फॉर्म, सिंपल, इन अ देशी भाषा अगर मैं बोलूं तो एब्रिविएशन इज अ शॉर्ट फॉर्म। ओके, शॉर्ट फॉर्म होता है लाइक एमएलए। एमएलए का मतलब क्या हो गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है मेरे को, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होता है एमएलए। ओके, तो एमएलए को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रूल नंबर 8 कहता है, जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा नाउन हो, कंप्लीट नाउन हो, लिखा हुआ हो विद ऑल द लेटर्स, तो उसके बाद ही आप केवल अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आप उसके शॉर्ट फॉर्म में या एक्रोनिम में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड माय मीनिंग। तो एमएलए इज होटल, इसका मतलब, एमएलए इज होटल का मतलब क्या हो गया? एमएलए इज होटल मींस कि भाई जो एमएलए है उसका होटल की बात करी जा रही है। एसआई पिस्टल, तो इट इज टॉकिंग अबाउट द सब इंस्पेक्टर्स पिस्टल। एमबीए डिग्री, डिग्रीज, एमबीए डिग्रीज का मतलब क्या हो गया कि जो
एमबीए की डिग्री है, उसकी बात की जा रही है। एमपी इज ऑनेस्टी, एमपी इज ऑनेस्टी का मतलब क्या हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑनेस्टी। ये रूल नंबर 8 इज वेरी सिंपल। नाउ वी शुड मूव टू अवर रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है? मोर देन वन पोजेसिव नाउन। देखिए मैंने आपको बताया कि यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज पोजेसिव नाउन। अच्छा, हम पोजेसिव नाउन यूज क्यों करते हैं? हम ऑफ लगा के भी तो पोजेशन दिखा सकते हैं विद द प्रपोजिशन, राइट? आप ऑफ लगा के भी एक तरह का पोजेशन दिखा सकते हो, बट आप अपॉस्ट्रोफी एस क्यों लगाते हो? वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस बिकॉज इससे क्या होता है? इट बिकम्स मोर कंसाइज, कंसाइज बन जाता है कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। बट ऐसा नहीं है कि यू विल बी यूजिंग अपॉस्ट्रोफी एस विद द नाउन अगेन एंड अगेन। नो, जितना कम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सको इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, यू हैव टू यूज इट। ओके, लाइक दिस। जैसे मैंने ये रूल नंबर 9 में यही बता रखा है कि भाई दो, यहाँ पे दो एग्जांपल है आपके सामने। पहला वाला एग्जांपल गलत हो गया, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ओके, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए ये थोड़ा गलत हो गया। ये भी सही है, पर मोर सूटेबल ये होगा, मोर फेवरेबल ये होगा फॉर योर राइटिंग ऑल्सो। ओके, द बॉसेज वाइफ्स। अब देखो यहाँ पे ना दो बार लिखा हुआ है, और देखो यहाँ पे बॉस जो है, बॉस जो है, बॉस मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने बॉस लिखा है, उसके आगे केवल अपॉस्ट्रोफी यूज करा है, एस नहीं यूज करा। ये मेरे को बताइए व्हाई आई डिड दिस। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा है, मैंने ऐसे क्यों लिखा है? यू विल बी टेलिंग दिस टू मी इन द कमेंट बॉक्स। सो द बॉसेस वाइफ ब्रदर इज नो मोर, इसका मतलब वो ये हो गया कि जो बॉस की वाइफ का भाई है इज नो मोर। ओके, बट दिस स्ट्रक्चर इज slightly wrong. How I will be recasting it like this: the brother of boss's wife. So जितना कम हो सके possessive noun उतना यूज करो इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। सो ये रूल ये कहता है। चलिए, अच्छा हुआ आपको समझ में आया होगा। सो ऑफ का आप यूज करके आप जो नंबर ऑफ पोजेसिव नाउन है वो घटा सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं टू रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 says apostrophe s to animate nouns। हाँ, तक मैंने आपको, आई होप यू रिमेंबर द रूल नंबर 1। मैंने रूल नंबर 1 में आपको बोला था यू कैन यूज apostrophe s with animate nouns, the living nouns। ओके, the nouns who are or which are living। ओके, उनके साथ आप क्या लगा सकते हो? apostrophe s लगा सकते हो। बट व्हाट अबाउट इन एनिमेट नाउन्स, जो निर्जीव हैं, उनके साथ आप कैसे apostrophe s का यूज करोगे? यू कैन नॉट यूज। द थिंग इज यू कैन नॉट यूज। व्हाई? आई विल लेट यू नो। आप यूज ही नहीं कर सकते हो नॉन लिविंग नाउन के साथ apostrophe s। लाइक in these four sentences you will be getting it, you will be getting my point, what I wanted to let you know। our rooms electricity is out of order, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? बिकॉज रूम के बाद में apostrophe s लगा रहा हूं। जो apostrophe s है वो केवल एनिमेट, जो लिव और लिविंग नाउन्स है उन्हीं के साथ apostrophe s लगता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड। तो ये गलत हो गया है, तो उसको मैं ऑफ लगा के यूज करूंगा। प्रपोजिशन ऑफ का यूज करो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट और इन एनिमेट नाउन के केस में। कैसे बनना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अवर रूम इज आउट ऑफ ऑर्डर। द करेक्ट वे इज दिस: चेयर्स वुड इज डिकेड। जो चेयर की लकड़ी है वो गल गई है, खराब हो गई है। ओके, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। व्हाई? बिकॉज चेयर इज व्हाट? चेयर इज इन एनिमेट नाउन। तो कैसे यूज करूंगा? वुड ऑफ चेयर इज डिकेड। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग दिस। आई होप ये स्लाइड में भी आपको जो भी कंटेंट है यू मस्ट हैव गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस स्लाइड इज लिटिल डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्शन ही देख लो, वर्ड एक्सेप्शन से पता लग जाएगा कि द रूल विच आई टुक इन माय लास्ट स्लाइड, वो रूल क्या कहता है? इन एनिमेट नाउन के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हो, बट आई हैव सम एक्सेप्शंस विद द लास्ट रूल टू। कैसे एक्सेप्शन है दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था वी हैव सम एक्सेप्शंस इन इंग्लिश ग्रामर, सो वही है ये। देखो एक्सेप्शन क्या है, मैंने आपको बताया है कि भाई इन एनिमेट नाउन के साथ आप नहीं लगाओगे अपॉस्ट्रोफी एस, है ना? अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, बट इन सम केसेस यू कैन यूज, एंड दीज आर सम केसेस। टाइम के साथ लगा सकते हो, मनी इन केस ऑफ वेट, डिस्टेंस, हाइट एंड पर्टिकुलरली प्लेस। तो ये अगर 5 आपको फैक्टर्स मिल जाए, सॉरी ये 6 हैं, हाँ 6 हैं, 6 अगर फैक्टर्स आपको मिल जाते हैं, देन कोई भी स्टेटमेंट होगा which contains these factors। okay, तो उस केस में you can use apostrophe s and you know that they are in animate। okay, तो जैसे today's news, आपको पता है कि ये टाइम की बात हो रही है, टाइम इज इन एनिमेट नाउन। okay, but you can use apostrophe s because it is what? it is exception। अरे मेरा कलर कैसे चेंज हो गया अचानक से?
क्या और कलर मेरे को यूज करना चाहिए कोई? बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग व्हाइट कलर फॉर सो लॉन्ग. Yeah, I should select, no. Yeah, this one, I should select the yellow one. Okay, I have chosen. Now, so today's news, it is talking about time. So there are some important phrases. They are in the form of phrases. Phrases की form में है. A rupee is worth, एक रुपए की वैल्यू, एक रुपए की जो वर्थ होती है. 80 kilos bricks, ठीक है? They are talking about weight. 20 miles walk, talking about distance. 120 meters building, talking about height. Delhi's water supply, talking about place. So ये exception है, आपको दिमाग में रखनी है. If you can you find them in your examination, these examples, so do not make them incorrect. Okay, अब आगे बढ़ जाते हैं. I think this is the last slide. I do not know. I do not remember how many slides I added, but I have added everything. Okay, you will not be able to lose anything if you learn from SSC point with the teacher. Yes. Okay. आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 11 क्या कहता है? रूल नंबर 11 कहता है कि भाई कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो पोजेसिव फॉर्म में होते हैं. देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर इन द पोजेसिव फॉर्म. लाइक आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं, माइन की बात कर लेता हूं. माइन क्या होता है? आई का पोजेसिव फॉर्म होता है ना? तो इस तरह के कुछ पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं. सो हाउ यू विल बी यूजिंग देम? विद व्हाट? विद apostrophe s. You do not have to use. सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, आपको जरूरत ही नहीं है. जैसे आप नाउंस में कर देते हो, नाउंस में क्या कर सकते हो? जैसे लिख दिया भाई, मैं लिख देता हूँ पलक. पलक एक मैंने नाम लिख दिया, मैं बोल देता हूँ पलक का घर, तो apostrophe s लगा सकता हूँ. लेकिन अगर मैं पलक को ही बोल के किसी प्रोनाउन का यूज करता हूँ, तो मैं दोबारा नहीं बोलता हूँ. जैसे सपोज करो मैं बोल रहा हूँ पलक का घर, और पलक से ही मैं बात कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा घर. आई एम टॉकिंग टू पलक, आई एम उसे ही बोल रहा हूँ तुम्हारा घर, तो मैं योर बोलूंगा, है ना? योर्स बोलूंगा, है ना? योर्स. घर को क्या बोलेंगे? होम. तो ये गलत हो जाएगा, apostrophe s नहीं लगाओगे. यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू डू नॉट हैव टू यूज apostrophe. यू हैव टू यूज s यूज करना है, बट यू डू नॉट हैव टू ऐड apostrophe. ओके, जैसा कि ये सारे एग्जांपल हैं. योर्स, ये हो गया गलत, ठीक है? योर्स, हर्स, देयर्स, अवर्स, इट्स. अच्छा, आपने देखा होगा एक ये वाला इट्स होता है ना? ये वाला इट्स होता है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दीज टू वर्ड्स. मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ. वैसे ये तो मेरी प्रोनाउन का पार्ट हो जाएगा, बट अभी बता देता हूँ बिकॉज सम स्टूडेंट्स कैन बी क्यूरियस टू नो. ओके, ये इट्स होता है और ये वाला भी होता है, लेकिन इसका मतलब होता है इट इज. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. तो रूल कोई गलत नहीं है मेरा. वॉट एवर आई एम टीचिंग इज नॉट रॉन्ग. ओके, सो आप अपस्ट्रफी नहीं लगाओगे यहाँ पे, कभी भी आपको कोई भी आपको अपस्ट्रफी नहीं दिखेगा. लेकिन ये जो है इसका मतलब पोजेशन नहीं है. पोजेशन एक्चुअली में यही है, पोजेशन यही है, बट ये जो है इट्स, इसका मतलब इट इज होता है. वो शॉर्ट फॉर्म में हम उसको ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आई का माइन हो गया एंड ही का हिज हो गया. ओके, अच्छा, ये मैंने कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं. अब मैंने ये क्यों डाले हैं बता देता हूँ. आपने लेटर वगैरह, जो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, यू मस्ट हैव सीन सम of these words like these. Okay, yours faithfully, your obediently, yours sincerely. तो उसमें आपने देखा होगा, आपको पता है कि भाई अगर मैं बोल रहा हूं योर हाउस, अच्छा योर हाउस सही होगा या योर्स हाउस सही होगा? प्लीज लेट मी नो, देन आई विल गो अहेड. ये दो फ्रेजेस आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. योर हाउस, योर्स हाउस, दोनों में कौन सा सही है और दोनों में कौन सा गलत है? ओके, लेट मी टेल यू. ये वाला सही है, ये गलत हो जाएगा. फिर मैंने यहाँ पे योर्स फेथफुली क्यों लिखा है? बोथ आर करेक्ट. ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. व्हाई आई सेड ये वाला सही है, ये वाला गलत है. वो भी गलत हो जाना चाहिए? नहीं, मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा है. जब भी किसी ऐसे वर्ड के सामने, वैसे एक्चुअली में ये तो एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव इसे बोलेंगे, बट उसको भूल जाइए अभी. जब भी इस वर्ड के सामने इस तरह के जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, उनके सामने नाउन आता है, तो अपॉस्ट्रोफी एस का हम यूज, सॉरी, एस का, वी आर फॉरगेटिंग, वी फॉरगॉट अबाउट अपॉस्ट्रोफी, बिकॉज़ इनके केस में, पॉजिटिव प्रोनाउन के केस में, डू नॉट हैव टू रिमेंबर अपॉस्ट्रोफी. अपॉस्ट्रोफी कुछ नहीं होता है, एस होता है केवल. ओके, केवल एस होता है. तो अगर किसी भी ऐसे वर्ड के सामने, पॉजिटिव वर्ड के सामने कोई नाउन होता है, नाउन, तो एस का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया है. बिकॉज वाई? बिकॉज ये नाउन है.
लेकिन जो लेटर होता है उसके केस में क्या होता है, ये जो होते हैं नाउन नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। तो ये कंसेप्ट मैंने सोचा, समझा एंड आई एडेड देम इनटू माय स्लाइड सो दैट इफ देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर क्यूरियस टू नो, ओके, दे आर स्मार्ट एनफ एंड दे वांट टू लर्न मोर देन बेसिक्स, तो ये उनके लिए कंसेप्ट है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम फेथफुली, ऑबिडियंटली, सिंसियरली से पहले योर्स क्यों लगाते हैं, बट नाउन से पहले योर क्यों लगाते हैं। ओके, तो रूल नंबर 11 भी कंप्लीटेड। तो रूल नंबर 12 पे आ जाते हैं। Rule number 12 is talking about what? Indefinite pronouns. Okay, indefinite pronouns कौन से होते हैं? Which are not definite and they are what pronouns? जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, everyone, someone, anyone. These are the examples of indefinite pronouns. Okay, तो इनका पोजीशन आप कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, apostrophe s लगा दोगे। ये वैसे बहुत ही सिंपल है, but I'm letting you know this because sometimes some students get confused and they need answer. Okay, so that is why I have added all into my slides. तो कुछ नहीं करना है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, सिंपल, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। एवरीवन्स कंसर्न इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, समवन्स ड्यूटी इज नोबडीज ड्यूटी। अच्छा फ्रेज है ना, अच्छी लाइन है। समवन्स ड्यूटी इज नोबडीज ड्यूटी। ओके, एनीवन्स रूल इज नॉट वैलिड। सिंपल है। उसके बाद कभी कभार क्या होता है, समवन के साथ आप क्या देख सकते हैं, एल्स देख सकते हो। ठीक है, सो ये उसको नहीं पता होगा जिसने ये रूल नहीं देखा होगा। वाई? बिकॉज इसके लिए थोड़ा समझना जरूरी है कि हम क्या करते हैं। अगर कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाता है, उसके साथ आप एल्स देख लेते हो, अच्छा एल्स की हिंदी क्या हो जाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय एल्स? एल्स की हिंदी हो जाती है, एल्स की हिंदी हो जाती है अन्य। ठीक है, एल्स की हिंदी हो जाती है अन्य। सो इफ यू फाइंड एल्स विद व्हाट, विद these indefinite pronouns, ओके, तो एल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगा, एल से पहले यहाँ पे नहीं लगेगा। यही मैं बताना चाहता हूँ विद दीज थ्री स्टेटमेंट्स। द टास्क वाज कंप्लीटेड बाय समवन, सॉरी, समबडीज एल्स। ये गलत हो गया। व्हाई? बिकॉज एल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे ना, फिर ये दोनों एक ही हो जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कंपाउंड नाउन में क्या होता है, आखिर वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। द सेम रूल अप्लाइज ओवर हियर। समवन, सॉरी, समबडी एल्सेस, एल्सेस आखिर वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। We require anybody else's skills and duty. I hope you understood this thing. आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाते हैं। Okay, rule number 13. Rule number 13 says what? Rule number 13 says possession in comparison of nouns. You can see three statements in rule number 3. And what do they say? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई आपको कंपैरिजन में कैसे यूज करना है अपॉस्ट्रोफी एस। आई होप आपको मेरे फॉन्ट्स दिख रहे होंगे, बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि दे आर स्मॉलर और लार्ज एनफ। इतने होने चाहिए कि यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन। ओके, छोटे नहीं होने चाहिए बिल्कुल कि आपको दिखे ही ना। तो पोजेशन ऑफ, इन कंपैरिजन ऑफ नाउन्स में क्या हमें बताना है, हमें बताना है कि भाई जब भी क्या होता है कंपैरिजन में आप पोजेशन का यूज करते हो, आई मीन अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हो, तो कैसे करोगे। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें से ऊपर वाली 2 गलत है, लास्ट वाली सही है। इसका मतलब क्या है, लेट मी टेल यू। पहला लिखा है डोनाल्ड्स होटल इज मोर एक्सपेंसिव देन रोनाल्ड, ये गलत हो गया। कंपैरिजन में क्या होता है कि जो कंपैरिजन में जो पोजेशन होता है पहले नाउन का, वो ही पोजेशन होना चाहिए दूसरे नाउन का। अब यहाँ पे गलत कैसे हो गया, लेट मी टेल यू। यहाँ पे बात कर रहे हैं जो डोनाल्ड का होटल है वो महंगा है रोनाल्ड से। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने रोनाल्ड के होटल से नहीं कहा। दोनों में क्या करना है, होटल का कंपैरिजन करना है, होटल का कंपैरिजन करना है। दोनों के होटल का कंपैरिजन, रोनाल्ड और डोनाल्ड दोनों के होटल का कंपैरिजन करना है। बट आप पहले स्टेटमेंट में क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग व्हाट, आप डोनाल्ड के होटल का कंपैरिजन कर रहे हो रोनाल्ड से, उसके होटल से नहीं कर रहे हो। इसीलिए गलत हो गया है। ठीक है, रोनाल्ड के होटल का आप कंपैरिजन रोनाल्ड से करोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए वो गलत हो गया है। तो ये आपको चीज देखनी है व्हाइल यू कंपेयर टू नाउन्स। सो अब दूसरा वाला क्यों गलत हो गया, डोनाल्ड्स होटल इज मोर एक्सपेंसिव देन डोनाल्ड्स होटल। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने, अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये तो सही है, बिकॉज अब क्या है, दोनों ही नाउन में जो पोजेशन है होटल होटल, दोनों के होटल का ही कंपैरिजन हो रहा है, फिर भी ये गलत कैसे हो गया है ना, जाहिर सी बात है। अब क्या है कि दोनों के होटल का ही कंपैरिजन हो रहा है कि पहले वाले का जो होटल है वो दूसरे वाले के होटल होटल से महंगा है ना। फिर भी गलत क्यों हो गया, लेट मी टेल यू विद व्हाइल आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द थर्ड वन। क्या कहता है, डोनाल्ड्स होटल इज मोर एक्सपेंसिव देन रोनाल्ड्स। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें कंपैरिजन इसी का हो रहा है, किसका हो रहा है, होटल का कंपैरिजन हो रहा है। किससे हो रहा है, रोनाल्ड के होटल से। ठीक है,
लेकिन मैंने इसको मेंशन नहीं किया बिकॉज़ बार-बार किसी वर्ड को यूज़ करना इट इज़ ऑलरेडी नोन। ओके? हमें पहले से ही पता है कि भई दोनों के होटल का कंपैरिज़न हो रहा है, तो दोबारा उसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें क्या करना होता है मोर कंसाइज़ बनानी होती है स्टेटमेंट को। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्चुअली में रोनाल्ड्स का मतलब ही यही है। वी आर टॉकिंग अबाउट रोनाल्ड्स होटल। एक्चुअली में इसका मतलब यही है। बट इन शॉर्ट फॉर्म आई हैव जस्ट रिटन रोनाल्ड्स। तो मोस्ट करेक्ट यही होगा। ऑप्शन नंबर सी। ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड दीज़ रूल्स। पोजेसिव नाउन आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा करा रहा हूँ। इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज़ दे आर इम्पोर्टेंट। दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके? पोजेसिव नाउन जो केस है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये शायद 2 ही बच रहे हैं आपके। उसके बाद आई विल बी कंप्लेनिंग पोजेसिव नाउन्स। ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि भई जो पोजेसिव नाउन्स होते हैं, वो कभी-कभार कॉमनली यूज्ड कंपाउंड नाउन में भी यूज़ होते हैं। कॉमनली यूज्ड कंपाउंड नाउन्स। कोई कंपाउंड नाउन है उसमें आप अवश्य एस लगा सकते हो पहले वाले नाउन के साथ एंड दे आर सम कॉमन like this. The government's policy, Europe's future, China's development, the world's economy, the school's history, our country's population. ओके तो ऐसे आप यूज कर सकते हो अपॉस्ट्रोफी एस को। मेरा बताने का मतलब यही है। ये बहुत सारे होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एटसेट्रा। बहुत सारे होते हैं बट आई हैव रिटन सम कॉमन। ओके ये आपको दिखते रहेंगे व्हेनेवर यू रीड। ओके एंड यू विल बी हैबिचुअल ऑफ दीज फ्रेजेस। उसके बाद लास्ट क्या कहता है पोजेसिव नाउन्स आर आल्सो एम्प्लॉयड इन सम वाइटल फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस भी होते हैं लाइक दीज वंस एट डोर्स डेथ, फॉर्च्यून्स फेवर, द सोल्स प्रेयर, गॉड्स मर्सी, इंडियाज हीरोज, फॉर कंशंस सेक। ओके मैंने आपको बताया था यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ठीक है यहाँ पे केवल अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे। वाई मैंने आपको बताया था एक रूल जिसमें कुछ वर्ड होता है जिसमें आखिर में सस हिस की आवाज आती है, उसमें हम केवल अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। तो सेम अप्लाइज ओवर हियर। ओके तो यहाँ पे केवल अपॉस्ट्रोफी लगेगा, एस का यूज नहीं होगा। एट अ स्टोन्स थ्रो, a train's arrival, a plane's departure, nature's laws, etc. तो यही है आपको ध्यान रखने हैं in the methods of using possessive nouns and I think the slides are completed and this is the end of our session and thank you. Okay you can see the thank you I have written on my slide. Okay so जैसा कि मैं रोज बोलता हूँ thank you for the session and now we will meet in our next session with a new topic. ओके बेसिकली मैं सोच रहा हूँ आर्टिकल्स का ही मैं आर्टिकल्स ही पढ़ाता हूँ नाउन्स के बाद वही स्टार्ट कर लेंगे। until then you have to do what you have to do whatever you want to do. Bye bye sayonara and take care.